ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾफ़ी कुछ सुन चुके हैं, कुछ सुन रहे हैं। इसी चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आज ਲੁਧਿਆਣਾ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ क्योंकि पब्लिक ਦੀ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ कि कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, इस लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ हैं। ਤੇ ਇसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, CMC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DMC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਪੋਲੋ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ DC ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 895 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 757 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 138 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 757 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 722 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, 13 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 22 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PGI 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੀ PGI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈਥ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਦੀ ਤੇ 1 ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਡੈਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੌਕੀਮਨ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3-3000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੌਕੀਮਾਨ ਤੇ ਗੁੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾफ़ी सारे क्वेश्चंस लोग सानू फेसबुक के ऊपर पूछ रहे हैं। इशबार सिंह ने क्या हैगा कि लुधियाने दी फिगरां काफ़ी वधिया हैं लेकिन टेस्टिंग एडिकुएट नहीं हो रही, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ प्रशासन की कर रहा है। ਇਸ਼ਵਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ DC ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਗਾਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਐਫਰਟਸ ਬਾਈ ਆਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ। युवराज सिंह ने क्या हैगा कि ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस तो बाद इकोनॉमी का की होएगा। युवराज जी तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, असीं इस चीज़ से आवांगे अखीर दे विच। मनदीप सिंह धालीवाल ने क्या हैगा कि प्राइवेट डॉक्टर्स क्लिनिक्स वगैरह प्रॉपरली OPDs दे विच नहीं कर रहे, उन्होंने पब्लिक नूं प्रॉब्लम आ रही है। ये बारे असीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज साडे नाल हैं, उन्होंने नाल गल करांगे। सब तो पहला मैं डॉक्टर सीमा सिंगल SPS अपोलो हॉस्पिटल
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਸਿੰਗਲ, SPS ਹਸਪੀਟਲ लुधियाना। कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस हमें पहले से पता है या नहीं? कोरोना वायरस के बारे में हमें पहले से पता है। ये जो हमें कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां होती हैं, ये कोरोना वायरस भी करता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन फ्लू या सर्दी जुकाम कहते हैं। कई सारे कोरोना वायरस इसको करते हैं, तो ये हमें पहले से पता है। पर कोविड-19 जो इस टाइम जो कोविड-19 करके जो वायरस आया है, ये इसी फैमिली का एक वायरस है जो अभी पहली बार जिसके बारे में हमें पता चला है। इसीलिए इसको नोवल कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार हमें ये दुनिया में आया है। ये हमें सिम्टम्स हमें वही सारे करता है सर्दी जुकाम खांसी वाले, पर ये इनकी सिवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा होती है। ये फैल बहुत ज़्यादा रहा है और इससे लोगों की जो मॉर्टेलिटी रेट हम इसको कहते हैं, इससे डेथ रेट हमारा कॉमन कोल्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक सिम्टम्स भी इसके कॉमन कोल्ड जैसे होते हैं, लेकिन उसकी सिवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के साथ में फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है और लोगों को बॉडी एक होता है इसमें। तो जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आप उसके लिए तुरंत अपने किसी स्वास्थ्य संस्थान में जाएं, किसी हॉस्पिटल में इसके लिए तुरंत जाएं और इसको इन्फॉर्म करें। ये इन्फॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपसे, आपकी फैमिली में और आपकी फैमिली से जिस भी लोगों को आप मिलोगे उनमें फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक और सवाल हमारे पास आ रहा है कि ये इसके कितने दिन तक किसी पेशेंट से मिलने के बाद में ये कितने दिन तक फैल सकता है, कितने दिन में हमारे इसके सिम्टम्स हमें आ सकते हैं। तो जब हम किसी रोगी से इसके संपर्क में आते हैं, उसके नेक्स्ट डे से 2 से 14 दिन तक के बीच में हमारे अंदर इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी किसी को ये सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं और किसी किसी को इसके सिम्टम्स नहीं के बराबर आते हैं। तो एक तरह से कुछ लोगों को, जैसे हम रूटीन में कोविड-19 के आने से पहले हमें कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होता था, कोई पेशेंट्स बिल्कुल उसी तरह से निकल सकते हैं और किसी किसी को इसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े और उसको ICU केयर की ज़रूरत पड़े। एक और सवाल हमारे पास आ रहा है कि हमें ये एनिमल से हमें ये फैलता है या नहीं। जो हमारे नॉर्मल कोरोना वायरस से जो हमें कॉमन कोल्ड होता है उसको हम ह्यूमन कोरोना वायरस कहते हैं, पर ये लास्ट दिनों में जो कोरोना वायरस हमने जो फैल रहा है, ये कहाँ से आया है एग्जैक्टली अभी तक हमें नहीं पता है। पर एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से एनिमल में फैलने की अभी तक हमें कोई मिला नहीं है हमें कि ये एनिमल से फैल रहा है। तो लेकिन हमें काफ़ी सारे क्लूज मिले हैं कि ह्यूमन से ह्यूमन में डेफिनेटली ये फैल रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने परिवार को, अगर हमें सिम्टम्स आते हैं तो हम अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को बचा के चलें और जैसे ही हमें लगे कि हमें इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम खुद को आइसोलेट करें और उसको तुरंत रिपोर्ट करें। इसमें लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास लगातार आ रहे हैं और एक हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या किसी ऐसे आदमी जिसके में कोई सिम्टम्स नहीं है उससे मेरे को कोरोना होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल वो लोग खरीदते हैं वेंडर वगैरह से, क्या वो इमीडिएटली खा सकते हैं कि कुछ देर उनको रखना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हम लोग चलते हैं अपने डॉक्टर लिडिया, जो कि CMC हॉस्पिटल में कोरोना की एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि इन क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं। डॉक्टर लिडिया। गुड इवनिंग। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। तो एक से दूसरे लोग को कैसे स्प्रेड होता है। इट इज़ मेनली अ रेस्पिरेटरी पैथोजन, मतलब वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो। सो व्हेन अ पर्सन कॉफ्स, वो कॉफ में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो एक से अगर इफ इट फॉल्स ऑन द अदर पर्सन देन दिस वायरस विल स्प्रेड। अगर 1 मीटर के दूरी में है तो एक कोरोना वायरस स्प्रेड करने का चांसेस कम है। एंड इफ द पर्सन इज कॉफिंग, अगर वो ड्रॉपलेट्स जाके सरफेस में सेटल हो जाए एंड अदर पर्सन विदाउट एनी प्रोटेक्शन अगर वो वाले सरफेस को अगर टच करके
अपने फेस और हैंड्स पे if they touch the face, then again the spread of infection is more. That is how it spreads. It's mainly a droplet infection. Then the next question is, can coronavirus, अगर दूसरे पेशेंट को कोई symptoms नहीं है, फिर भी will we get any infection or not? Again, मैंने अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि it's a droplet infection. So अगर कोई symptoms नहीं है, अगर droplets हमारे face के ऊपर नहीं गिर रहा है, this infection is not going to spread. And एक और क्वेश्चन है मेरे पास, how long does the virus survive on the surfaces? अभी लेटेस्ट स्टडीज हैव शोन दैट few hours से लेके 3-4 days तक surfaces में रहता है. मैक्सिमम प्लास्टिक एंड स्टील में रहता है, mainly for 3 days. So it's always safer to wash hands before touching your face and hands. अगर cough भी करते हैं, हाथ handkerchief हमेशा यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए. And if you touch the surface, immediately hand wash. Hand washing is very important. At least for 20 seconds, we have to wash our hands with soap and water or an alcohol-based sanitizer. क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना कोल्ड और फ्लू वगैरह के सिम्टम्स हैं, कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो क्या उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि घर में इलाज कर लेना चाहिए? क्वेश्चन आया है कि किसी के फेसेस यानी कि उसके जो बाथरूम वगैरह है, उससे इस डिज़ीज़ को क्या वो कैच कर सकते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर राजेश महाजन, जो कि डीएमसी के अंदर कोरोना से रिलेटेड सारे मसले को देखते हैं. तो डॉक्टर साहब, आप हमें इसके बारे में ज़रा बताएं. नमस्कार. जो पहला क्वेश्चन सर ने पूछा है कि अगर किसी को कोल्ड एंड कफ है तो उसको टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. कोल्ड एंड कफ जो है एक ये कोरोना वायरस या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है, जो कि आजकल वैसे भी सीज़न में कॉमन है. बट अगर आपके किसी भी रिलेटिव्स, किसी भी फ्रेंड को किसी को कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है तो डेफिनेटली आपका टेस्ट होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर किसी को माइल्ड सिम्टम है तो उसको क्या करना है, उसमें उसने अपने आप को घर पे आइसोलेट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए और कुछ नहीं. पर अगर कुछ लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर है, कोई अंदर फेफड़ों की बीमारी की दिक्कत है, या अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र की तकलीफ़ है, या कोई अगर स्टीरॉयड्स ले रहा है, और या कोई अगर कोई अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ ले रहा है, उनके टेस्ट ज़रूर होने चाहिए. जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि क्या फीसिस से हमारे को ये बीमारी हो सकती है. अभी तक हमने जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखे हैं उसमें पेट का दर्द और लूज मोशंस लोगों को लग जाते हैं. अगर किसी एक ऐसे मरीज़ में जिसको डायरिया लगा हुआ है, उससे अगर आपका क्लोज कंटैक्ट है तो आप एक हाई रिस्क कंटैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें आप लोगों को अपने आप को आइसोलेट करना है. अभी तक हमारे पास लिटरेचर, ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर में नहीं है जिसमें हम ये कहें कि फीसिस से ये कोरोना वायरस स्प्रेड होता है. पर एक चीज़ है कि ये फीसिस में पाया गया है जिन लोगों को पेट के सिम्टम्स थे. अगला क्वेश्चन था कि हमारे को कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को नहीं करनी चाहिए. जो इस प्रोग्राम की शुरुआत में सर ने कहा था कि हर किसी को अपने हाथ धोने चाहिए, आइदर सोप एंड वाटर के साथ 20 सेकंड के लिए या हैंड सैनिटाइजर के साथ. उसका बेसिक रीज़न है कि जैसे मैडम ने अभी बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ स्प्रेड होता है. तो अगर आपने हाथ अपने किसी भी ऐसे सरफेस को टच किए हैं और उसके बाद अपने फेस को, आइज़ को और नोज़ को टच करते हैं, तो ये आपको ये बीमारी हो सकती है. तो इसका मतलब है कि अपने फेस को बार बार टच ना करिए. किसी भी चीज़ को खाने से पहले अपने हैंड को अच्छे से साफ करिए. जब भी अपने पब्लिक प्लेस पे जाना है तो बिना फेस मास्क के मत जाइए. अगर आपको कोई खांसी जुकाम है तो अपने आप को घर पे आइसोलेट करिए. कोई भी पब्लिक प्लेस और अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए. जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन क्या है, क्यों लोग डरते हैं, क्यों हम इतना मीडिया में सोचते हैं, सुनते हैं कि लोग क्वारंटाइन को रेजिस्ट कर रहे हैं. क्वारंटाइन का मतलब है कि अपने आप को आइसोलेट करना. इन केस अगर आप किसी ऐसी जगह से आए हैं, बाहर से आए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, या आप किसी जगह से आपके किसी रिलेटिव को कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है, तो आपने अपने आप को 14 दिन के लिए घर के अंदर रखना है. उसका ये मतलब नहीं है, उसका एक बेसिक आइडिया है कि आप ये डिज़ीज़ दूसरे बंदे को, अगर आपको एक्सपोजर हो गया है
तो कल आपको एसिम्प्टोमेटिक है तो आपसे ये डिजीज़ दूसरे को हो सकती है, तो आपने दूसरे को नहीं फैलानी, तो इसलिए अपने आप को आइसोलेट करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन का आंसर है कि क्वारंटाइन में अपने आप को आइसोलेट करना है और इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप पब्लिक की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आपके लिए क्वेश्चन आया है कि हाउ आर डॉक्टर्स क्योरिंग कोविड पेशेंट्स, HIV एंटीवायरस और SCQS एजिथ्रोमाइसिन आर दे ਹੈਲਪਫੁਲ? यानी कि कोविड पेशेंट्स ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ? कोविड पेशेंट्स के लिए हमने इसकी अलग अलग कैटेगरीज की हुई हैं। पहली कैटेगरी सिंपल माइल्ड जिसको कहते हैं, जिसमें एक किसी को खांसी जुकाम और हल्का सा बुखार है, उसके लिए ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक है। आप कोई भी अपने डॉक्टर से बात करके जैसे एजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन जो दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं। जिन लोगों को खांसी जुकाम के साथ सांस की दिक्कत है, डेफिनेटली उसमें अब HCQ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूछी जा रही है और एजिथ्रोमाइसिन पूछी जा रही है, वो आप ले सकते हैं। पर अभी तक हमारे पास अगर आप कहोगे कि बहुत क्लियर कट रोल है, वो नहीं है। जब भी आपने ये दवाई लेनी है, क्योंकि इसके साथ हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा पाई गई हैं, लोगों में सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ा है, तो ये विदाउट मेडिकल कंसल्ट आपने कोई भी दवाई नहीं लेनी। इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। जो HIV की ड्रग्स हैं वो भी अब कुछ स्टडीज़ आ रही हैं जिसमें उसका फ़ायदा बताया गया है, कुछ में इसका नुकसान बताया गया है। तो विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टेशन आपने कोई भी ड्रग नहीं लेनी। ठीक है। जसनूर आहूजा ने पूछा है कि एक की वायरस न्यूज़पेपर टच करन नाल फैलदा है। इसी तरीके नाल संजू धर्मानी ने पूछा है कि इस दी जे कोरोना दी जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो कि ट्रीटमेंट दे विच कोई फ़ायदा होंदा है? कुछ अपने सिटीजनस ने पूछा है कि कोरोना होने का मैनू खतरा है। इन्हां सारे क्वेश्चनस का जवाब आपां लवांगे अपने डॉक्टर राजेश बग्गा जिहड़े कि सिविल सर्जन लुधियाना है। डॉक्टर साहब, इन्हां क्वेश्चनस का तुसीं सानूं जवाब दिओ। नमस्कार जी, मैं लुधियाना वासियों को दसना चाहना कि ये जिहड़ा करोना वायरस है ये अखबार के टच करने नाल नहीं फैलता, क्योंकि जिहड़ी साडे कोल अखबार आती है वो तंदुरुस्त व्यक्ति सानू दे रहा है। सो इस करके बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं है। असी अखबार पढ़नी है। जे तुसी बहुत वहम करते हो अखबार पढ़ने तो बाद हैंड वॉश कर लो प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर, पर अखबार के थ्रू ये फैलता, ये गलत है। सानू बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं है, सावधानी लैन की लोड़ है। दूसरा सर सवाल की सीगा कि अपना मैनू कोरोना हो सकता है? पब्लिक पूछ रही है कि जे असी सारिया सावधानियां लईए तो सानू करोना वायरस नहीं लग सकता, नहीं हो सकता। उहदे विच सावधानियां की ने? सरकार वालों बहुत क्लीयर कट डायरैक्शनस ने। असी भीड़ भड़के वाली जगह ते नहीं जाना, असी इकट्ठ विच नहीं जाना। जे किसी नूं खांसी जुकाम होया वो अपने घर अपने मूँह ते नक ते रुमाल ਜਾਂ मास्क ला के बैठे ਜਦੋਂ तक वो ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि ये इदां दा मौसम है जिहदे विच सानू बहुत सारे होर वायरसेस ने जिहदे नाल जुकाम खांसी हो जाता है। सो जे किसी नूं इस सीजन दे विच जुकाम खांसी होया उहदा ये मतलब नहीं कि इहनूं करोना वायरस ही हो गया। ये बहुत बड़ा भरम है, भुलेखा है। असीं उस केस दे विच सस्पैक्ट करते हैं जिहड़े व्यक्ति नूं ये खांसी है, बुखार है ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ। एक गोल्डी भगत इन्होंने पूछा है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाई हार्ट पेशेंट, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। इसी तरीके नाल क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबायोटिक इस कोरोना के इलाज ਲਈ लाभकारी हैं।
क्वेश्चन अपने सिटीजनस वालों पूछा गया है कि इस कोरोना ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸੀਕਰੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸੀਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ HCQS ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ECG ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ QTc ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਾਤਕ ਅਰਿਦਮੀਆਜ਼ ਵੀ ਥਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਾਇਰਸ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ। ਐਜ਼ਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। HCQS ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਫਲੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ SARS ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸੀਵੀਅਰ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਸੀਵੀਅਰ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SARS ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ SARS ਇਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। COVID-19 ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਰਸ, SARS ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਰਿਵਾਈਟਲ ਕੋਵੈਡੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। एक क्वेश्चन और पूछा है हरकीरत सहरा ने पूछा है कि कोई बंदा रिकवर होने तो बाद दोबारा इन्फेक्टेड हो सकता है कोरोना नाल। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। एक क्वेश्चन राहुल मल्होत्रा ने पूछा है कि ਆਪਾਂ नॉन वेज ਖਾਣਾ ਸੇਫ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ठीक है।
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। नमस्कार जी। दिनचर्या के बारे में बात करूं तो दिनचर्या का मतलब है हमारे पूरा दिन भर आचरण कैसे रहता है। इसमें हमारा आहार हो गया, हमारा विहार हो गया। तो दिनचर्या के बारे में बताऊंगी आपको, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके वैसे ही क्लियर हो जाने हैं उसमें। दिनचर्या का शुरुआत हम कैसे करते हैं, उठते हैं, ज़्यादातर हम लोग बेड टी लेते हैं, वो हम में से बहुत से। तो पहले तो ये कि बेड टी में थोड़ा सा चेंज कर दो, उसमें आप इलायची, 1 पिंच काली मिर्च ये आप डाल के ज़रूर लें, तुलसी, और ये चीज़ों को मतलब अब आप इंटेंशनली याद से ऐड करके लेना शुरू कर दें, इसको अपना हिस्सा बना लें। उसके बाद आपको योगासन करने हैं, प्राणायाम करना है। प्राणायाम देखो करने से, योगासन से आपकी हेल्थ को, फिजिकली और मेंटल हेल्थ आपकी दोनों स्ट्रांग होगी और बूस्ट होगी आपकी इम्यूनिटी उससे। प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करें, आप डेली करें अनुलोम विलोम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है आप सारी कर सकते हैं। योग आसन आप अभ्यास करें, और 15 मिनट 30 मिनट के लिए कम से कम आप मेडिटेट ज़रूर करें। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि अब गर्मी आ गई तो गर्म पानी हम कैसे पिएं, जो ले सकते हैं गर्म पानी वो लें, हल्का गर्म पानी पूरे दिन में पिएं। और जो कहते हैं कि हम नहीं पी सकते, वो जैसे हम दिन में कितना पानी लेते हैं, 2-3 लीटर लेते हैं, उसमें हम एक दिन हम ऐसा करते हैं, उसमें सौंफ डाल लें, पानी को उबालें 2-3 लीटर को, जैसे ही उबल जाए उसको गैस बंद करें, उसमें आप सौंफ डालिए, पूरे दिन भर पिए। एक दिन उसमें मुलट्ठी डाल दीजिए 1 चम्मच, एक दिन सौंफ, एक दिन हरा धनिया सूखा ले लीजिए आप, चाहे बीज ले लीजिए उसके, वो डालें आप। अजवाइन जीरा डाल सकते हैं। ये आप इकट्ठा नहीं, एक चीज़ को लेके रोज़ इसको ऐसे पानी को रूटीन में पिएंगे तो उन हर्ब्स के हमारे जो ये सारी जो हर्ब्स मैं बता रही हूँ ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो हमारी ये दिन भर हम जो डाइट लेते हैं उसका एक पार्ट बनेगा और हमारी इम्यूनिटी नेचुरली हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। नॉर्मल पानी की जगह हम ये पानी को अगर हम यूज़ करेंगे तो एक ही इंग्रेडिएंट डालें, एक दिन एक चीज़ को डाल, ऐसे रोज़ करेंगे तो आप बोरियत भी नहीं होगी कि आप उबेंगे भी नहीं कि मैं ये क्या पी रहा हूँ। उसके बाद ये एक तरह का आपका ना डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। अगर कुछ लोग पानी में ग्लो डालकर लेना चाहते हैं क्योंकि ये ग्लो हो गया, तुलसी हो गई, सुंड हो गई, अदरक हो गया, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट ही करती हैं। ये हमारे खाने में जैसे हमारी स्पाइसेस ऐड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इनका सबका रोल है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। आप अदरक को बरी काट के, नींबू डाल के ये आप ज़रूर लें। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें इस दौरान, हमें हमारी जठराग्नि का ध्यान रखना है, हमारी अग्नि को प्रदीप्त ही रखना है, डाइजेशन हमारी अच्छी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, प्लस इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं। और एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जो ग्लो को कई लोग कुछ पूछते हैं कि ग्लो हम कैसे ले सकते हैं, तो ग्लो अगर अंगूठी जितनी मोटी होनी चाहिए अगर मिल जाए तो वो सबसे बढ़िया होती है। 6 इंच की हो, उसके पीसेस करके 2 लीटर पानी में उसको उबालें आप, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, आधा चम्मच उसमें, और जब ये 1/4 रह जाए तब उसको आप एक ही सिंगल डोज में आप उसको पी जाएं, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर कोई स्पेशली इसको आप ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो बीमार है वो ले, ये लोग आप रूटीन में डेली में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आजकल के दिनों में आपको ये लेना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूँगी। और जो है आप एक स्पेशल जिनको जो शौक रखते हर्बल टी मुझे पीनी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें, मुनक्का हो गया, सुंड हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी, तुलसी, ये शक्कर डालें उसमें, और ये चीज़ें डाल के एक उसका जो हर्बल टी आप बना के उसको पी सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़ है जो डाइट में आपको ऐड करना चाहिए दिनचर्या में अपने, वो है आपको सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स ही लेना चाहिए जो सीजनल हैं। जैसे अभी संतरा किन्नू जो चल रहे हैं, विटामिन सी है उसमें, विटामिन सी रिच, आंवला कैंडी, आंवला किसी भी रूप में आप ले सकते हो, आंवला किसी भी मर्जी रूप में आप लें। आंवला हाईएस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है।
बच्चे जैसे हैं आंवला कैंडी खुश होकर खा लेते हैं, और बच्चों का होता है कि बच्चों को क्या दे, बड़े तो कुछ भी ले लेंगे, बच्चे आंवला कैंडी बहुत खुश होकर खाते हैं। तुलसी को आप ऐड कर सकते हैं, तुलसी ड्रॉप्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, 5 तरह की तुलसियों को उसमें एक्सट्रैक्ट है, तो वो आप जब भी पानी पिए प्लीज़ उसको ज़रूर डालें उसमें। बाकी ये हो गया, योग आसन हो गए, आपकी डाइट हो गई। एक मेरे पास जैसे क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज देखो योग आसन सबसे बेस्ट होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, उनसे कोई दिक्कत भी नहीं होती, हर कोई इसको कर सकता है। प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज़ प्राणायाम ज़रूर 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 करें। खान पान में यही ध्यान रखना है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो आपकी अग्नि को मंद करे, हैवी जैसे चीज़ें, पनीर हो गया, दही हो गया, ये चीज़ें आपको, इन चीज़ों का आपको परहेज़ करना चाहिए। बसंत ऋतु निकल गई है, उसमें ये स्पेशली हम ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करते तो यही चीज़ें दोष उत्पन्न करके हमारे शरीर में इन्हीं रोगों को करती हैं। जो भी लें सुपाच्य हो, हल्का हो, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, वो चीज़ें हमें लेनी हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हम लोगों को जो है अपने मिल रहे हैं लोगों के, तो मैं अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगा डॉक्टर साहब से। एक एक डॉक्टर साहिबान से मैं 10-10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछूंगा, जिससे कि सभी लोगों की क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए। डॉक्टर राजेश महाजन जी से मैं पूछूंगा। रितिका सिंगला ने पूछा है कि कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को लेनी है, एक लाइन के अंदर जवाब चाहिए। एज सच नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स को अपना शुगर स्टेटस कंट्रोल करके रखना चाहिए स्ट्रिक्टली, जब भी कोई भी इन्फेक्शन पैथोलॉजीज चल रही है। संजू धर्मानी ने पूछा है कि क्या कोरोना का इफेक्ट जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उन पर सीवियर होता है? जिन पेशेंट्स के भी फेफड़े ख़राब होते हैं या जिसमें अस्थमा का होगा, उनमें अगर कोरोना होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। जितेंद्र सचदेवा ने पूछा है कि क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल को डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए पानी और साबुन के कोई सॉल्यूशन में डाल, पानी और सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल के? किसी भी चीज़ को अगर आपने बाहर लेना है, कच्ची कोई चीज़ नहीं लेनी, उसको अच्छे से वॉश करके प्रॉपरली उसके बाद ही यूज़ करना है। सौरभ ग्रोवर ने पूछा है कि क्या करेंसी नोट्स से भी कोरोना फैल सकता है? देखिए सर, ऐसे अगर कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है जो हम कहें कि, पर ये है कि कोरोना वायरस अगर उसके ऊपर पेपर सरफेस के ऊपर कुछ घंटे परसिस्ट कर सकता है। निपुण शर्मा ने पूछा है कि क्या हम लोग सर्जिकल ग्लव्स को एक बार से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं? अगर डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स हैं, आइडियली उनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए एक बार यूज़ करने के बाद। मनदीप धालीवाल ने पूछा है कि हाउ मेनी वेंटिलेटर्स वी हैव इन लुधियाना इन डीएमसी? डीएमसी में सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए हमने 5 वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। चरणजीत राठौर ने पूछा है कि क्या ये वायरस लिक्विड के साथ ट्रैवल करता है, जैसे दूध और पानी इनके साथ कोई ट्रैवल करता है? ये वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के साथ ट्रैवल करता है। अगर कोई खांसी करता है या कोई बोलता है तो उसके जो थूक के कण हवा में जाते हैं, उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत जल्दी जल्दी और लोगों का जवाब दिया। हैप्पी शर्मा ने पूछा है कि लॉकडाउन से लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, मेंटल उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, उसके लिए क्या सुझाव है? तो इसके लिए मैं सिविल सर्जन साहब के पास चलता हूँ, उनसे पूछते हैं कि इसमें जो लोग घर में बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? अभी अभी हमारे डॉक्टर मोहनदीप ने बहुत अच्छी बातें की हैं। हमें अपना जीवन का एक रूटीन होना चाहिए, कब उठना है कब सोना है। जब हम उठते हैं, उठ के फ्रेश होके उसके बाद हमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारे योग करने चाहिए। उसके बाद हम अगर धार्मिक शब्दों में रुचि रखते हैं तो वो लगा लेने चाहिए। टीवी पे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं, धार्मिक प्रोग्राम आते हैं। न्यूज़ का आपका अगर रुझान है तो न्यूज़ दे सकते हो। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अखबार पढ़ सकते हो। अगर घर में कोई लिटरेचर है वो पढ़ सकते हो। यहाँ तक घर में सभी लोग तंदुरुस्त होते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं आप। और कई तरह के आजकल ऑनलाइन काम भी चल रहे हैं। अगर आपने कोई काम करना है या किसी से वार्तालाप करना है तो ऑनलाइन आप बातचीत भी कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं।
कोरोना क्या मच्छरों से और फ्लाइज से फैलता है, इसके लिए मैं डॉक्टर विवेक सीकरी जी के पास जाऊंगा। विवेक शर्मा जी ने पूछा है कि क्या ये मच्छर और फ्लाइज से फैलता है? नहीं, ऐसा कोई अभी एविडेंस नहीं है कि ये मच्छर और फ्लाई से फैलता है। गंदगी का ध्यान जरूर रखना चाहिए, गंदगी जाएगी तो इन्फेक्शन रुकेगा बाकी सारे। अवनीत सिंह ने पूछा है कि किस तरीके का खाना इस समय अवॉइड करना चाहिए, कोरोना में किस तरीके का खाना अवॉइड करना आपका चाहिए? कच्चा, जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया, अभी कच्चा खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो खाना लिया है कच्चा फ्रूट का खाना, तो उसको प्रॉपर साफ सुथरा खाना चाहिए। बाकी घर का कुछ भी बना हुआ पौष्टिक खाना खा सकते हैं। गोल्डी भगत ने पूछा है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट्स के लिए अच्छी है? प्लाज्मा थेरेपी थोड़ा सा रिजर्व्ड है हाई रिस्क केसेस के लिए जो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, और इसका भी आपको 100% इफेक्टिव है। इसका कोई अभी हमें चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, वक्त के साथ ही में चलेगा पता कि प्लाज्मा कितना इफेक्टिव है। दीपक यादव ने पूछा है कि इज दिस वायरस एयरबॉर्न, हवा में है ये वायरस, हवा का वायरस है? ड्रॉपलेट बॉर्न, बेसिकली हवा से ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास जाती हैं, उससे वायरस फैलता है। अगर सूखी एयर है उससे नहीं फैलेगा ये। गौरव सेठी ने पूछा है कि क्या सनलाइट इस वायरस को खत्म करने के लिए उपयोगी है? सनलाइट से वायरस का जो है, जो ड्रॉपलेट सूख जाती हैं, वायरस का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। लोग कहते हैं गर्मी आएंगी वायरस कम हो जाएगा, लेकिन मेन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ये फैलता है। सनलाइट से ज़्यादा इसका असर नहीं होता कम होने का। तरुण कपूर ने पूछा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक से एक दूसरे से फैलना। तो लॉकडाउन का जो पर्पस हमारा ये कि कम्युनिटी को जितने भी लोग हैं वो घर के अंदर रहें, आपसी मेलचाल कम करें ताकि ये वायरस कम फैले। राजीव विग ने पूछा है कि मैनू IBS दी प्रॉब्लम है, IBS दी प्रॉब्लम है की ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली प्रिकॉशन है ध्यान रखने के लिए कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अपनी डाइट इंप्रूव करिए, और जिसको इन्फेक्शन है उसके पास मत जाइए, उससे से आपका प्रिवेंशन होगा, इन्फेक्शन ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। जीवेश सिंह ने पूछा है कि कोई बीपी के मरीजों के लिए कोई प्रिकॉशंस खास रखने वाली? बीपी के मरीजों को चाहिए कि अपना बीपी कंट्रोल रखें, और बीपी उसको नमक कम खाए, बीपी कंट्रोल में रहे। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वायरस से बचने के लिए और नहीं है, जितना कि सोशल डिस्टेंसिंग है, बाकी अपना रेगुलर हैंड वॉश करिए। आयुष के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों को आ रहे हैं। पुष्पिंदर सोडी ने पूछा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए कोई प्रिकॉशंस रखनी चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए? तो आयुर्वेदिक के डॉक्टर साहब के साथ हम लोग पूछेंगे। जी देखिए, जो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से सर्च करके मेडिसिन ले लेते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐसे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका शरीर देखते हैं, उसका उनके दोष देखते हैं, उनकी प्रकृति क्या है वो देखते हैं। कोई एक चीज़ किसी के लिए वादी है, किसी के लिए अच्छी है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक जैसे लहसुन है, आजकल कई लोग लहसुन खा रहे हैं, बोला गया है हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने कि ये ले सकते हैं, लहसुन भी लेना है, लेकिन कईयों को वो लहसुन उनकी प्रकृति को नहीं सूट करता है। तो ये चीज़ें मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने आप बिना किसी कंसल्टेशन के कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन तो बिल्कुल ना लें। रवि गोयल ने पूछा है कोई स्फटिका भस्म, जी क्या इसका कोई फायदा है? जिस स्फटिका भस्म को हम जैसे सूखी खाते हैं, आप इसकी खिल बन जाएगी, आप तवे पे खिल बन जाएगी, एक भस्म बन जाएगी, उसकी पाउडर बन जाएगा। उसको एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी, इतना ही 4 गुना उसमें मिश्री मिला दीजिए, उसको लें, सूखी खांसी इससे जाएगी आपकी। 2-3 बार लें इसमें। बाकी अगर हैंड सैनिटाइजर बनाना चाहें घर पे, उसके लिए मैं एक चीज़ आपको मैं बता सकती हूँ जिसमें फिटकरी का योगदान है। जैसे 1 लीटर पानी लिया आपने, उसमें आपने 100 ग्राम नीम के पत्ते क्रश करके डालो उसमें। जब उबाली आ जाए उसको और आधा पानी बचे, तब उसमें ये फिटकरी ऐसे बिना उसको खिल नहीं बनानी, ऐसे ही उसको क्रश करके फिटकरी को 1 चम्मच उसमें डालें, और उसमें आप चाहे तो ग्लिसरीन थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हैंड सैनिटाइजर घर में तैयार हो गया। ठीक है। सिविल सर्जन साहब से क्वेश्चन पूछा है गोल्डी भगत जी ने कि जो डोर टू डोर रैपिड टेस्ट है वो लुधियाना में कब से शुरू हो रहे हैं? ये 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे जी। पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिए हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन डे और सो। संगीत बिंदु ने पूछा है कि क्या कोरोना का ट्रीटमेंट फ्री है कि इसके पैसे लगते हैं? बिल्कुल फ्री है जी। मिलन सूद ने पूछा है कि
मेडिकल टीम सब्जी मंडी में परमानेंटली लगा दी जाए, सिविल प्रशासन को सुझाव दिया है। ठीक है, लगाई जा सकती है। ठीक है। विशाल दूसरा ने पूछा है कि क्या ग्रीन टी लेना इसमें इम्यून कोरोना के लिए फायदेमंद है? डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। काफ़ी सारे हम लोगों को आए जा रहे हैं, सभी का जवाब देना मुश्किल है, हम लोग उनको फेसबुक के माध्यम से इसमें लिख के जवाब दे देंगे। काफ़ी सारे लोग वॉक के लिए जाते हैं। जी ने कहा मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे पाबंदी लगाई जाए। देखिए, ये पुलिस का काम है और हम लोग डेफिनेटली इस पर पाबंदी हम लोगों ने लगाई हुई है और काफ़ी सारी अवेयरनेस लोगों को की हुई है। तो जो कोरोना की लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये तो कंटिन्यूस लड़ाई है और ये किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, ये केवल डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, ये केवल पुलिस की लड़ाई नहीं है, ये केवल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये तो सारे ये जो लड़ाई है ये सामाजिक लड़ाई है। इसमें सरकार भी, NGOs भी, लोग भी और सारा समाज जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस पर विजय नहीं पा सकते। और आज के इस प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद भी यही था कि जो लोगों की शंकाएं हमारी हेल्पलाइन पर आती हैं, कई बार हम लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती है तो हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसका जवाब दे सकें। और आज आप सबसे जुड़ने के लिए आप जो कि आप प्रशासन के साथ जुड़े, मैं सारे ही डॉक्टर साहब की तरफ से, DC साहब अपनी तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूं। और भी जो आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आप फेसबुक के माध्यम से या हेल्पलाइन पे पूछते रहें, हम लोग उनका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच। लुधियाना तो ब्यूरो रिपोर्ट SMZ न्यूज़।